السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عائشہ سلیم اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آنیسٹی پہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی کیا ہوتی ہے۔ آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ایبسنس میں بھی اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو مانیں، آپ اس کے لیے ایکسکیوز کریں، آپ معافی مانگ لیں۔ آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے والدین نے اگر آپ سے پوچھا ہے تو آپ ان کے آگے سچ بول دیں۔ سچ بولنے کی پاداش میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے یا آپ کی بات کو اس وقت کوئی نہ سمجھے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ آپ نے سچ بولا تھا۔ آپ سے کوئی نقصان ہو جائے تو آپ صحیح صحیح بتا دیں، آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو آپ صحیح صحیح بتا دیں، آپ کم از کم اس چیز کو ایڈمٹ کریں۔ دیکھیں، بہت دفعہ زندگی میں ہم نادانستہ طور پر بھی کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان غلطیوں کا ادراک کریں اور ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمانداری کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ کبھی دوسروں کا راستہ مت کاٹیں، کبھی دوسروں کے حصے کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش مت کریں، کبھی کسی کے حصے کی کامیابیاں چھیننے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہے اور آپ کے فرینڈس بھی اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں تو بتا دیں۔ لیٹس سے سیٹ آئی ہے لیکچرشپ کی 10 سیٹیں ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے، آپ باقیوں کو بھی بتا دیں۔ ملے گا آپ کو وہی جو آپ کے نصیب کا ہے۔ اگر آپ کو وہ نوکری ملنی ہے تو 1,00,000 بندے میں بھی آپ کو ہی ملنی ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملنی تو 5 لوگوں میں بھی آپ کو نہیں ملنی۔ اگر آپ سب کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ آپ کو وہ چیز نواز دے جو شاید ورنہ آپ کو نہ ملتی۔ اسی لیے ایمانداری کا دامن کبھی مت چھوڑیں۔ اکثر میرے اسٹوڈنٹس ایک سوال پوچھتے ہیں، میم آج کل آنیسٹی کا زمانہ نہیں ہے، میم جو آنیسٹی سے چلتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، میم جو آنیسٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، میم جو آنیسٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، ہم کیوں آنیسٹی پہ چلیں؟ ہمارے نہ حکمران آنیسٹ ہیں، نہ ہمارے اساتذہ آج کل کے آنیسٹ ہیں، نہ لائرز آنیسٹ ہیں، نہ پولیس آنیسٹ ہے، تو آنیسٹی نے ہمیں کیا دینا ہے؟ یہ تو کتابی باتیں ہیں۔ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتی ہوں اور میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی، دیکھیے، نہ ہم نے کسی کی قبر میں جانا ہے، نہ ہم نے کسی کا جواب دینا ہے، نہ ہم نے کسی کی زندگی گزارنی ہے، نہ ہماری منزل اور دوسروں کی منزل ایک ہے، نہ ہمارا حاصل اور دوسروں کا حاصل ایک ہے، تو پھر ہم لوگوں سے بری چیزوں میں انسپائر کیوں ہوں؟ دیکھیں، ہمارا دین ہمیں بارہا کہتا ہے کہ ہمیں آنیسٹی سے چلنا چاہیے، ہمیں اس رب پہ توکل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کے نزول سے پہلے ان کا کردار بہت مشہور تھا، اور وہ کیا مشہور تھے؟ صادق اور امین، سچ بولنے والے اور ایماندار۔ کوئی شخص جتنا مرضی امیر ہو جائے، جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جتنا مرضی گھمنڈی ہو جائے، جتنا مرضی غرور والا ہو جائے، وہ باعزت تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، لوگ آپ کے پیسے سے انسپائر ہوں لیکن پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو گالی نکالیں کہ فلانا جو ہے وہ ایسا انسان ہے پر پیسہ واوا ہے اودے کول، یا فلانا جو ہے اس میں بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، وہ آپ کے منہ پہ تو جی سر، جی میم، جی سر کرے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرے کہ بڑا خرانٹ ہے، بڑا بے حس انسان ہے، پتہ نہیں اس پہ کتنا عذاب آئے گا، پتہ نہیں اس کو اللہ کو کتنا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی اچھی بات تھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں انسپائر تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں تمام آسائشیں ہمارا حاصل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد ہر روز یہ خبریں سنتے ہیں
28 साल का बंदा फोत हो गया, 35 का फोत हो गया, 40 का फोत हो गया, नौमौलूद फोत हो गया। यानी हमने हमेशा यहाँ पर नहीं रहना। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हम हर 2 नंबरी से वकार बना ले दुनिया में, मकारी करें, लेकिन जब हम इधर से जाएंगे तो हमारा नामा अमाल में क्या चीज होगी? यही होगी ना, हम बेइंसाफ थे, हम गुनाहगार थे, हम हक तलफी करते थे, हम लोगों के माल, दौलत और इज्जत पर नकेब लगा के बैठे होते थे। और याद रखें कि दुनिया में अरूज उतना लाजिम नहीं है जितना लाजिम है आपके लिए कि आप रोजे हशर अरूज पाएं। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी ये नहीं होती कि आपको सामने जब बैठ के आपसे कोई काम कराए तो आप उसे ठीक ठीक करो, ये तो खौफ था। ऑनेस्टी ये होती है कि जब आपको ये पता हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, आप फिर भी अपने काम को खुश उसलूबी से और सही अंदाज से अदा करो। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। एक स्टूडेंट थी, वो अपने लैपटॉप पे पेपर देती थी क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड थी। एक दिन उसकी टीचर जो है उसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ के चली गई, तो उसने अपनी टीचर को खुद कॉल किया और उसने कहा कि मैम आप प्लीज़ आके यहीं पे बैठें क्योंकि मैं पेपर कर रही हूँ। ऑल दो मैं कभी भी नोट्स नहीं खोलूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को कोई इल्ज़ाम लगा दे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर मुझे ये शक भी होता कि आप चीटिंग करोगे तो मैं कभी उठ के ना जाती। आपका 3 साल रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि आपके सामने कोई खोल के भी कुछ रख देगा तो आप उसकी तरफ नहीं देखोगे। एक बात याद रखिए कि जो लोग ऑनेस्टी से जिंदगी गुजारते हैं, ईमानदारी से, जो लोग ना हक तलफी करते हैं ना लोगों से कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें अल्लाह बहुत नवाजता है। और उसकी वजह उनकी नेक नियति होती है, उसकी वजह उनकी मेहनत होती है, उसकी वजह वो मुसलसल जद्दोजहद होती है। जो एक ज़माने में लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये दीवारों से सर मार रही है। देखिए, दीवारें सिला नहीं देती, सिला अल्लाह देता है, और उससे बेहतर सिला देने वाला कौन है? हमें अल्लाह ताला सूरह असर में कहता है कि वो हक पे रहने वाले और सब्र करने वालों के साथ है। और हक पे वही शख्स होता है जो खुद अपना काम पूरी तरह से करता है। हम ऑनेस्ट हो सकते हैं अगर हम ये याद रखें कि बेशक हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो अल्लाह जो है उससे कुछ पोशीदा नहीं है। और जब उससे कुछ पोशीदा नहीं है तो हमें हमारी हर लफ्ज़िश पे पकड़ आ जाएगा और हमें हमारी हर ईमानदारी पे नवाजा जाएगा। जो ईमानदार शख्स होता है ना, वो इस चीज़ पे कामिल ईमान रखता है कि अल्लाह ताला उसकी इस नेकी का सिला उसे ज़रूर देगा। ईमानदार शख्स किसी का ना इल्म चोरी करता है, ना हुनर चोरी करता है, ना उसकी जगह अपना नाम लिखवाना पसंद करता है। बल्कि ईमानदार शख्स तो वो होता है कि जिसका नाम दूसरे ले रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसने किया है सारा काम। जो बेईमान होता है ना, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम कराता है और अपना नाम लिखवा कर बड़े फख्र से बताता है बॉस को जाके, ये मैंने किया। आप अपनी स्टैंप दुनिया में तो लगा लोगे उस चीज़ पे, लेकिन रोज़े हशर आपसे पूछा जाएगा कि किस हक से आपने किसी की मेहनत पे अपना नाम लिखा था। चलें, इस बात को मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ और आपको बेहतर समझ आएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सल्तनत का बादशाह था। उसने एक फैसला किया कि वो अपने बेटों की जगह अगला बादशाह इस सल्तनत में से किसी आम बच्चे को बनाएगा। उसके बेटों ने इस बात को बहुत नापसंद किया, लेकिन उसने कहा कि बच्चों, तुम मेरे घर पैदा हुए हो,
इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। लेकिन इस सल्तनत पे ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, या ऐसा कोई ना कोई गौहर जरूर होगा जो मेरे मरने के बाद इस सल्तनत को इंसाफ और अदल से चला सके। मुझे ऐसा बादशाह चाहिए। मेरे लोग मेरे मरने पे ये तो कहेंगे कि ये इंसाफ पसंद बादशाह था, लेकिन अगर मैं कोई बुरा बादशाह छोड़ जाऊंगा तो कहेंगे कि उसके हाथ में इख्तियार था, उसने इस सल्तनत को खुद तबाह किया है। एक दिन वो अपनी सल्तनत के तमाम बच्चों को, जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी, उसने अपने महल में बुलाया। उन तमाम बच्चों को एक एक बीज दिया और उन बच्चों से कहा कि आप अपने घर जाकर इस बीज को एक एक गमले में लगाओ और 1 साल बाद ठीक मैं आपको यहीं बुलाऊंगा और आप अपने अपने गमले के साथ आएंगे। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मेरे पौधे में जितने अच्छा फूल फल लगेंगे, मेरा बादशाह बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्या होता है, सारे बच्चे आपस में ये बात करते हैं, मेरा पौधा तो इतना हो गया, मेरा पौधा तो इतना हो गया और मेरा पौधा इतना हो गया। उनमें एक बच्चा होता है 15 साल का, अब्दुल्ला। वो उस बीज को जाके एक गमले में लगाता है, उसको रोज पानी देता है। 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, 3 गुजरते हैं, उस गमले में कोई पौधा नहीं उगता। जब वो इर्द गिर्द के बच्चों से सुन रहा होता है, मेरे पौधे पे इतने पत्ते लग गए हैं, मेरे पौधे पे कोंपलें खिलने लगी हैं, उसे बहुत महसूस होता है, आखिर मेरे गमले में कोई पौधा क्यों नहीं लगा। साल गुजर जाता है। वो दिन आ जाता है कि जिस दिन तमाम बच्चों ने अपने अपने गमले लेकर बादशाह के दरबार में जाना होता है। अब्दुल्ला बहुत परेशान होता है और वो तय करता है कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके गमले में कोई पौधा नहीं लगा होता। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुमने अपनी पूरी मेहनत की, तुमने पूरा साल इस उम्मीद पे इसको पानी दिया कि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई कोंपल ज़रूर फूटेगी। तुम ज़रूर जाओ बादशाह के पास और उसे बताओ कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद तुम्हारे गमले में कोई पौधा नहीं लगा। वो नहीं तैयार होता, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार समझाकर भेज देती है। जब दरबार में वो दाखिल होता है तो वो देखता है कि तमाम बच्चे अपने अपने पौधे के पास खड़े हुए हैं। हर किसी के गमले में खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। किसी के फूलों वाले पौधे हैं, किसी के फलों वाले पौधे हैं, किसी के लंबे लंबे पत्तों वाले पौधे हैं, किसी के खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हैं। किसी के गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसके अंदर पत्तों में 2-2, 3-3 रंग आ रहे हैं। वो खामोशी से एक कोने में जाके अपना गमला रख देता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कहते हैं, तुम अपना खाली गमला लेकर क्या करने आए हो? तुम्हारे तो गमले में कुछ नहीं उगा। तुम बादशाह को क्या बताने आए हो कि तुम नाकाम हुए हो? तुम्हें तो शर्म के मारे आना ही नहीं चाहिए था। वो अपनी आंखों से बारहा आंसू पोंछता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे क्यों भेजा जब मेरे गमले में कोई पौधा लगा ही नहीं। इतने में बादशाह आ जाता है। बादशाह कहता है कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं आपके पास। तो आगे से बादशाह को एक बच्चा कहता है कि बादशाह सलामत, यहाँ पर एक बेवकूफ वो भी आया है कि जिसके गमले में कोई पौधा नहीं लगा। बादशाह आगे से कहता है, कहाँ है वो बेवकूफ जिसके गमले में कोई पौधा नहीं लगा और फिर भी आया है? अब्दुल्ला डरते डरते अपने गमले को उठाए आगे आता है और अपनी अश्कबार आंखों के साथ कहता है कि बादशाह सलामत, मैंने 365 दिन इस गमले का बहुत ख्याल रखा, इसे दिन में 2 दफ़ा पानी दिया, बहुत दुआएं मांगी, लेकिन मेरे गमले में जड़ ही नहीं उगी, कोई फूल ही नहीं लगा, कोई पत्ता ही नहीं उगा। तो बादशाह सलामत उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, आपका नाम क्या है बेटा? वो कहता है, अब्दुल्ला। बादशाह सलामत कहते हैं, मेरे मरने के बाद
मेरी सल्तनत का बादशाह अब्दुल्ला होगा। वो सारे बच्चे हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उन सबके पास तो इतने खूबसूरत पौधे होते हैं, और बादशाह ने उनके ऊपर तवज्जो देने की जगह उस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया। क्यों? बच्चे सवाल करते हैं, बादशाह सलामत मेरा तो इतना महंगा पौधा है, बादशाह सलामत मेरा तो इतना खूबसूरत पौधा है, बादशाह सलामत मेरे पौधे पर तो देखे कितने प्यारे फूल लगे हैं। बादशाह उन्हें जवाब देता है कि बच्चों, मैंने तुम सबको बॉइल्ड सीड्स दिए थे, यानी मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे उन्हें उबाल कर दिया था, और उबले हुए बीज में पौधा नहीं उगता। तुम सब ने बादशाह बनने की खातिर उस बीज की जगह अपनी मर्जी का बीज उगा लिया और मुझे मुतासिर करने आ गए। ये मैं ही जानता था कि इस बीज में से पौधा नहीं उग सकता, सिवाय इस एक ऑनेस्ट और ईमानदार बच्चे के। किसी ने भी ईमानदारी से मेरी बात नहीं मानी, और मुझे अपनी सल्तनत का बादशाह वो चाहिए जो ईमानदार हो, चाहे उसका कोई कितना ही मजाक उड़ाए, चाहे उसको कोई कितनी ही अजियत पहुंचाए, लेकिन वो अपने कौल फेल में खड़ा हो। और अच्छा और सच्चा बादशाह ही अच्छी सच्ची और तरक्की पसंद कौम को चला सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारा भी मामला है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो बड़े कामयाब होते हैं। बड़े लोगों के घर, गाड़ी, माल, दौलत, इज्जत देखकर हम बड़े मुतासिर होते हैं, और हम कहते हैं या अल्लाह मेरे पास क्यों नहीं है, या अल्लाह ताला मैं तो मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक, मेरे पास इतनी दौलत इज्जत क्यों नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक ईंटें उठाने वाला बाबा था जो ईंटें ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लेकर जा रहा था सीढ़ियों से। क्योंकि वो मेरे घर रोज आता था तो मुझे उस पर बड़ा तरस आता था कि वो इस बुढ़ापे में मेहनत इतनी क्यों कर रहा है। मैंने एक दिन काम वाली बच्ची के हाथ उसे पैसे भेजे कि बाबा जी को ये पैसे दे दो और उनसे कहो कि आप इस बुढ़ापे में ये तकलीफ दे काम मत करें, आपकी बूढ़ी हड्डियां इन ईंटों का बोझ नहीं उठा पाएंगी। उन बाबा जी ने मुझे पैसे वापस भेज दिए, ये कह कर कि उस बिटिया से कहो कि जो रिस्क मैं इन बूढ़ी हड्डियों से कमाता हूँ वो मेरे हलक में हलाल जाता है, और हलाल रिस्क खुद ही ताकत दे देता है। मैं उस बच्ची की इज्जत करता हूँ, लेकिन उसे कहो मेरे लिए दुआ करे कि मैं जब तक हयात रहूँ मैं हलाल रिस्क मेहनत और ईमानदारी से कमा कर खाऊं। दूसरों की बेईमानियों से मुतासिर होना छोड़ दें। अपनी जिंदगी का दायरा कार आप खुद मुतय्यन करें, और अपनी जिंदगी के लिए असूल व ज़वाबित आप खुद बनाएं। जो दूसरे कर रहे हैं उसके जवाबदेह वो हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके जवाबदेह आप हैं। और ईमानदारी से काम करने वाला शख्स सुरखरू ज़रूर होता है, उसे वक्त लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन एक दिन आ ही जाता है जब वो सुरखरू हो जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उसकी फौतगी पे उसके इर्द गिर्द हर शख्स यही कहता है इसने ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी है, और ईमानदारी ईमान का अहम तरीन जुज़ है। अपना रखिए बहुत ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिए, अच्छी बात फैलाना एक नेकी है, और हम सब मिलके